I'm hyper excited today to welcome a very special friend of mine, whom, when I invited, I was really very excited. And then gradually, this morning, my excitement turned into my goosebumps when I started thinking, how do I introduce my special friend who is actually a maverick? This friend of mine is a Marine officer. He is a photographer. He is a Sanskrit scholar. He is an astrologer. He is an Urdu poet. He is a patriarch. He is a philosopher. He is a filmmaker. God has been very, very kind to very, very few people on this planet to have blessed so many gentle qualities, so many creative qualities under one brain. I feel so blessed to welcome Mr. Praveen Chaturvedi, a very dear friend of mine. Welcome, Praveen ji, and thanks a lot for accepting this time. Today's political era, where we are seeing politicians busy in reclaiming the lost territory, reclaiming the lost state, reclaiming the lost history. We are witnessing a new humanitarian youth carrying out the legacy of Nehruan and Gandhian service philosophy ahead. He is a new humanitarian face to public service we have, who is busy reclaiming good health of people at large, irrespective of their age, caste, creed, religion, or political affiliation. I feel so honored and humbled to welcome Mr. B. Srinivas, President of All India Youth Congress. श्रीनिवास जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. प्रोग्राम शुरू करें उसके पहले एक दिलचस्प वाकया बताना चाहेंगे. जब मैं कॉलेज में एडमिशन मिला मुझे बैंगलोर और उसके बाद कोयम्बतूर, और कॉलेज की रैगिंग और इंट्रोडक्शन के दौरान जब हमसे मेरा इंट्रोडक्शन मांगा जाता था, तो हम हमेशा बड़े खुशी खुशी एक लाइन बोला करते थे कि आई एम बोर्न इन ए सिटी वेयर पीपल कम टू डाई. और ये उस समय का, उस उम्र का मेरा काशी को एक्सप्लेन करने का अपना एक फनी सा तरीका हुआ करता था. और आज मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है जब मुझे ये पता चलता है कि पूरे विश्व में काशी को अब पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में माना जाता है. काशी की एक और पहचान है कि काशी महादेव के त्रिशूल पे टिकी हुई है. काशी की को आध्यात्मिक राजधानी इसलिए भी कहा जाता है कि काशी में बहुत सारे गुरुओं ने जन्म लिया. संत कबीर काशी में जन्मे थे, संत रईदास काशी में जन्मे थे, संत तुलसीदास जी काशी में जन्मे थे. इन्हीं गुरुओं की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज हमारे बीच काशी में एक और विलक्षण गुरु मौजूद है, जिनको हम अपनी तरफ से अगर बोले तो हम उनको बहुत रैडिकल गुरु मानते हैं. रैडिकल हमने इसलिए बोला कि गुरु जी की फिजिकल एज तो शायद मेरे जितनी होगी, लेकिन गुरु जी की आध्यात्मिक उम्र तुलसी के जितनी ही है, ये मेरा विश्वास है. गुरु जी की आध्यात्मिक उम्र और चिंतन की उम्र कबीर के जितनी ही है, ये मेरा विश्वास है. और ये मेरा विश्वास उस दिन से बना जब एक इत्तेफाक था कि मुझे गुरु जी को सुनने का मौका मिला और गुरु जी ने एक ही डिस्कोर्स में तुलसी, कबीर और गालिब सारे टेक्स्ट को एक साथ अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया. तो टुडे आई फील सो फॉर्चुनेट दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय फेवरेट गुरुजी टू ऑल माय फ्रेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. तो उमा द अख हमारे गुरुजी, दो मोस्ट रेडिकल गुरुजी ऑफ काशी, एंड वी आर लकी. मेरी माँ हमेशा कहती है कि आप सबसे नसीब वाले हैं अगर आप किसी लाइव गुरु के आपको सानिध्य का मौका मिले.
तो आज हमारे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वी आर गोइंग टू टॉक विथ माय मोस्ट फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु उमा दी अक। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको आज समय दिया। Hello and welcome to all my friends from all across the world in today's episode of My Social Responsibility. Today, I feel humbled in introducing my friend, philosopher, my guide, my mentor from the day of my college. He was the director of PhD Institute of Management when I was pursuing my master's program in international business. Currently, he is the director of India's most prominent entrepreneurship training institute, which is known to each and every one of us. It's XIME. Nandagopal, Dr. Nandagopal. I'm honored to introduce to all of you to Dr. Nandagopal, who is an eminent personality and an opinion maker and a thought leader, and has groomed millions of kids all across the world like me. And you can very well understand the kind of personality Dr. Nandagopal has, that in spite of being so more than 1.5 decade that I have passed out of college, but I'm still having the same affection for my mentor, Dr. Nandagopal. So I hope and trust that after this conversation, his fan following will increase in between my friends also. So most welcome, Dr. Nandagopal, and thanks a lot for accepting this invitation to come and speak to us. हमारे MSR की अगली श्रृंखला में वी आर फॉर्चुनेट कि आज हमारे साथ हमारे एक विशेष फ्रेंड हैं, सिद्धार्थ तिवारी जी। सिद्धार्थ जी का अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ साझा करूं तो सिद्धार्थ जी फॉर्मली एजुकेटेड हैं जर्नलिज्म में। प्रिंट मीडिया अमर उजाला से इन्होंने अपना करियर शुरू किया, फिर एक बहुत लंबे समय तक आज तक के ये नेशनल फेस बने हुए थे। आज भी अगर आप सिद्धार्थ तिवारी का नाम गूगल करेंगे तो आपको उनके आज तक पे किए हुए अमेजिंग जर्नलिज्म के उदाहरण वीडियो के फॉर्म में दिख जाएंगे। सिद्धार्थ जी का आज तक के साथ सफर थमा तो सिद्धार्थ जी ने सोशल मीडिया, जो आजकल की सबसे सशक्त माध्यम है, सोशल मीडिया को अपना माध्यम बनाया। और अभी कुछ महीनों पहले सिद्धार्थ जी ने सोशल मीडिया पे अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और 6 महीने से भी कम समय के अंदर 7.25 लाख सब्सक्राइबर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे सिद्धार्थ जी के बने। तो ये कैसे हो पाया, और सिद्धार्थ जी एक ओल्ड स्कूल से पढ़े हुए व्यक्ति मिलेनियल जनरेशन के नए टूल को इतनी सफलतापूर्वक इस्तेमाल कैसे कर पाए, वो आज हमको मौका मिला है सिद्धार्थ जी से सीखने का। और ये चर्चा हम शुरू करें उसके पहले हम विशेष थैंक यू बोलेंगे सिद्धार्थ जी को कि इस कोरोना काल में उनकी पर्सनल बहुत बड़ी लॉस उनको गुजरना पड़ा है। सिद्धार्थ जी के अपने परिवार में लगभग सभी लोग संक्रमित हुए थे और इस संक्रमण के कारण उन्होंने अपने सगे भाई को खोया है। और उसके बावजूद एक कर्मठ व्यक्ति होते हुए, कर्म की पूजा करते हुए सिद्धार्थ जी उस पर्सनल लॉस से आगे बढ़ते हुए अब वापस अपने जर्नलिज्म पे ध्यान देना शुरू किया। एंड ही वाज काइंड एनफ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आज हमारे माय सोशल रिस्पांसिबिलिटी के इस एपिसोड में हमसे बात करने के लिए वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हिंदी में या संस्कृत में एक बहुत ही फेमस मेरी फेवरेट सी सेइंग है, यत्र तत्र सर्वत्र, हियर देयर एंड एवरीवेयर। दिस अप्लाइज appropriately to our today's guest, Dr. Geeta Hegde. She has studied from Harvard. She was teaching at PSG. Then she was director at Velenka, Bangalore. Now she is dean at UPSC, Dehradun, India's most premium business school. You can see her rubbing the shoulder with Chief Minister of Uttarakhand, giving advice in the panel of the task force as initiative to promote entrepreneurship and
startups. You can see her rubbing shoulders with Kiran Majumdar-Shaw, the promoter of Biocon. You can see her giving consultancy to companies like Infosys, TCS, Murugappa, Precall, HDFC, Ernst and Young. You can also see her, traveling across the world, into US, to Canada, to Hong Kong, presenting papers and establishing India's intellectual power all across. We are so honored that out of all her busy schedule of working from home, Dean of India's most premium institute, Dr. Geeta Hegde, has given us some time. Most welcome, ma'am, and thanks a lot for giving the time. आज की श्रृंखला में, हमारे माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कड़ी के डिस्कशन की श्रृंखला में हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस जर्नलिस्ट, जिनको कि जो भी कोई बिजनेस करता है या जो भी कोई बिजनेस की पढ़ाई पढ़ता है वो CNBC न्यूज चैनल जरूर देखता है। और हमको ये बताते हुए फक्र और प्राउड हो रहा है कि CNBC आवाज ने जब इंडिया में लॉन्च करने का निर्णय लिया था तो उस लॉन्चिंग टीम के इंटीग्रल पार्ट थे हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो कि इस समय इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट अथॉरिटी हैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जर्नलिज्म के। सर बहुत दिनों तक सर ने CNBC आवाज के साथ और अलग अलग चैनल्स के साथ एज ए बिजनेस जर्नलिस्ट काम किया। अभी फिलहाल कुछ महीनों से सर ने अपना खुद का YouTube चैनल लॉन्च किया, जिसके जरिए वो एज ए पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक कमेंटेटर की तरह अपने ओपिनियंस देते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इनको उतना ही फॉलोशिप मिला सोशल मीडिया की दुनिया पे कि इतने कम समय में सर के पर्सनल YouTube चैनल पे इस समय 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और वैसी ही हलचल ट्विटर पे भी बनी रहती है। और अगर हम में से जो भी कोई रेगुलर न्यूज व्यूअर है वो देखेगा लगभग हर शाम को सर सीनियर मोस्ट पैनल में मिल जाते हैं अपने ओपिनियन देते हुए, और इट शोज हाउ मच हिज ओपिनियन मैटर्स फॉर दिस नेशन। तो हर्षवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद, आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया। आज हमारे साथ जो स्पेशल मेहमान हैं वो हमारे बहुत ही पुराने मित्रों में से एक हैं। अगर उनका इंट्रोडक्शन हम अपने अंदाज में दें तो वो एक ऐसे मित्र हैं जो फिजिकली देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं, लेकिन इमोशनली वो अभी भी इसी शहर के बाशिंदा हैं, जो प्रोफेशनली इस देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस बेनेटन कोलमैन के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क रेडियो मिर्ची के ऑल इंडिया क्रिएटिव हेड हैं, लेकिन इमोशनली वो एक थिएटर पर्सनालिटी है। वो प्लेस लिखते हैं, वो पोएट्रीज लिखते हैं और वो थिएटर में एक्ट करते हैं। तो एक कलाकार एक इमोशनल व्यक्ति होता है और एक इमोशनल व्यक्ति ऑल इंडिया क्रिएटिव हेड है एक लीडिंग रेडियो चैनल का। और उन्होंने आज हमको समय दिया कि हमारे साथ माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिस्कस करें, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। मोस्ट वेलकम विपुल सर। आज हमारे स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें उसके पहले एक मजेदार वाकया शेयर करने का मन कर रहा है। जैसे कि जो मेरे मित्र मुझसे वाकिफ है वो जानते होंगे कि हमको आर्ट का बहुत शौक है और वो शौक के कारण मेरी दोस्ती होती जाती है आर्टिस्ट लोगों से, आर्ट पढ़ाने वालों से, आर्ट क्यूरेट करने वालों से, आर्ट गैलरी वालों से। इसी सफर में, इसी सिलसिले में आर्ट को एक्सप्लोर करने के एक मुलाकात होती है मेरी एक दिलचस्प इंसान से, जिसने पढ़ाई करी बिजनेस मैनेजमेंट की ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी। और वो अपने बिजनेस मैनेजमेंट के करियर को एक्सप्लोर करते हैं, वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनते हैं और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में 15 साल काम करते हैं। फिर उनका भी ये शौक होता है आर्ट का, और उस आर्ट के अपने शौक को एक्सप्लोर करते हुए उनको ऐसा लगता है कि उनको इसकी और नॉलेज एक्वायर करनी है। इस नॉलेज को एक्वायर करते करते वो अपने सफर पे जब आगे बढ़ते हैं
तो वो इसकी फॉर्मल एजुकेशन लेने लंदन पहुंच जाते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच से वो एक कोर्स करते हैं, जिससे कि उनको आर्ट की पूरी दुनिया की नॉलेज मिलती है। अब आर्ट का पैशन तो मेरे में भी है, लेकिन ये एक एक्सट्रीम पैशन होगा जिससे कि आप जिसमें कि एक व्यक्ति फाइनेंस, जो कि राइट और लेफ्ट ब्रेन दो अलग अलग होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले एक साइड था फिर जंप करके दूसरी तरफ आता है अपने पैशन के कारण। तो इस एमएसआर की सीरीज में मुझे लगा कि अगर मैं अपने इस खास दोस्त को आपसे न मिलवाऊं तो मेरी तरफ से एक बेईमानी होगी। तो वी आर सो लकी एंड फॉर्चुनेट कि मेरे उस दोस्त ने आज ये रिक्वेस्ट कबूल करी और वो हमसे आर्ट की दुनिया में कोविड के दौरान क्या हो रहा है इस बारे में हमारी इस चर्चा में उन्होंने भाग लेने से अप्रूवल दिया अपना। तो हम सब स्वागत करते हैं मेरे दोस्त मुकुल पुरोहित जी का। मुकुल जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस टाइम, मोस्ट वेलकम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यो मोक्षीमामृत। A very warm welcome to all my friends from across the world in today's episode of Make My Social Responsibility। जो आपको आश्चर्य होगा कि आज का एपिसोड शुरू करने के पहले हम ये संस्कृत में क्या पढ़ रहे थे। बचपन से ही माँ ने एक चीज सिखाई है कि जब भी कभी हम मुसीबत में होते हैं तो हम महादेव की शरण में जाके महामृत्युंजय मंत्र का ये जाप करते हैं, जिससे हमें सारे मुसीबतों से मुक्ति का भगवान आशीर्वाद देते हैं। इस मंत्र का मतलब इस मंत्र की प्रेजेंस हमें ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी मिलती है और इसके अलावा शिव महापुराण में भी इस मंत्र के बारे में काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। इस मंत्र में आखिरी में एक वर्ड आता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसको लेकर के अक्सर मेरे जहन में सवाल आया करता था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे बहुत ही पुराने मित्र डॉक्टर कुंवर साहनी से हुई और ये जान के आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कुंवर साहनी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है इस शब्द पे और उन्होंने डॉक्टरेट की है, उन्होंने रिसर्च की है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे और वो फाउंडर है काशी एकेडमी फॉर होलिस्टिक इनोवेशन के। तो हमने सोचा कि इस कोरोना महामारी में माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमारे इस एपिसोड में क्यों ना डॉक्टर कुंवर साहनी के तजुर्बे का लाभ हम अपने बाकी सारे मित्रों तक पहुंचाएं और हमने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर साहब से कि आज वो हमें थोड़ा समय दें और हम लोगों को एनलाइटन करें इस विषय के बारे में। तो डॉक्टर कुंवर साहनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। And welcome to all my friends on this today's episode of My Social Responsibility. We are honored and privileged to have Mr. Siddharth with us in this today's millennial generations scenario. It is very important nowadays. All of us have understood that it is so important that you do things and then you are able to express what you are doing in form of expressing it in a very impressive manner. And here we have a gentleman who has 20 years of experience as a life coach and as a storytelling expert who teaches multinational companies like Capgemini, like TCS, and like very other multinational companies. He has been coaching them on how to approach life and on how to write their life stories and how to write stories of what they have done and to teach and inspire people. So we are honored and privileged that Mr. Siddhartha has agreed to have a dialogue with us on My Social Responsibility. Most welcome, Mr. Siddhartha.